Hello, dear friends. I welcome you in today's morning class. Uh, Friends, I know that you are pretty busy today in your Raksha Bandhan celebration. So, first of all, I would like you all happy Raksha Bandhan to all of you. And though we do not have today the official holiday, so we have to take our class today. So I I request you to be patient enough and attentive enough for this class. So, dear students, we have been studying a very wonderful story, The Adventures of Toto by Ruskin Bond. And this particular Ruskin Bond story is a typical Bond story, you see. And we have left yesterday's class we have left some part of his introduction. uh, Actually, I have a lot to say about Mr. Ruskin Bond, as he is my very you see favorite writer. And when I have been to Missouri days back in 2012, I tried very hard to visit him, but at that time he was not. I came to know that he was not there at his residence, so we left that idea. But whenever I read the stories of Ruskin Bond, it takes me into a very specific, you see, simple world, which is very much different from the mystic and you see something very complicated piece of writing of other writers to whom we acknowledged much. Ruskin Bond, he was born in British India to Edith Clark and Ambre Alexander Bond, you see. And he completed his schooling from Bishop Cotton School, Shimla. While he did move to the UK for a couple of years after graduating from school, you see, he came back to India to eventually settle down in Dehradun. A very great novelist, a freelance writer, an editor, and of course a storyteller. Ruskin Bond's books are delight to read, you see. If anything, the fact that this author started off early in his writing career is sure to inspire your creative little one if he's got the flair for and an interest in storytelling. Uh, Dear friends, you must have heard about the Rusty stories. So, only some of us probably know that the Rusty stories are stories of Ruskin Bond's own childhood spent in Dehradun, where he lived with his grandparents. After graduating from Bishop High School in Shimla, uh, uh, he then subsequently returned to Dehradun and supported himself financially by writing stories and poems for magazines and newspapers. The Rusty behind the pen went on to pen down several short stories, novels, essays, autobiographical and semi autobiographical works across genres. Now, his contribution to children's literature earned him several awards. In 1999, Bond was honored the Padma Shri, the fourth highest civilian award in India, and in 2014 the Padma Bhushana, the third highest civilian award. You can say it. Uh, all of us would have come across his books or stories in our textbooks or libraries while growing up, bringing us all closer to life in the hill stations. You see, uh, uh, Padma Bhushan Ruskin Bond is an Indian author, you can say. He is not acclaimed as the Anglo Indian writer,
as he is of British descent, who started spinning stories at the very young age of 17. You see, he wrote his first novel. I was talking about this in our first lecture. He wrote his first novel, and the name of the novel is The Room on the Roof, when he was just 17 years old, which won John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957. Since then, he has written several novellas, over 500 short stories, as well as various essays and poems, all of which have established him as one of the best loved and most admired chronicles of contemporary India. In 1992, he received the Sahitya Akademi Award for English writing for his short stories collection Our Trees Still Grow in Dehra. His Room on the Roof, The Blue Umbrella, and several short stories are very much famous. So we will begin from the part, dear friends, we have left yesterday. We have seen that because Toto did not allow any of his companions to sleep at night in the private zoo of grandfather. Grandfather decided to take him to Saharanpur, where he was going. He has been going to take his pension. Now, grandfather happened to meet the ticket collector, and when ticket collector saw Toto in the bag of grandfather, he asked grandfather that he had to give a sum of amount for this dog also. It means that he qualified Toto as a dog, and 3 rupees was the sum. यहाँ पे लिखा है देखिए, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, Mr. Ticket Collector, since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleaded and triumphant look, and said, "No charge, sir. It is not a dog." तो दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ा था। रस्किन बॉन्ड के बारे में आप ज़रूर पढ़िए, उनकी स्टोरीज़ को पढ़िए. Most of his stories have been translated into several other languages also, in Gujarati, in Marathi, in Tamil, in Hindi. Most of his stories. But try to read all his writings, all his short stories in English only, to have the essence, the basic essence of his writing. So we will move ahead. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Stable होता है अस्तबल. Stable है ना अस्तबल. घोड़े वगैरह जहाँ रहते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेबल. तो इस स्टेबल में जो है कौन रहते थे स्टेबल में? ये देखिए, तबेला. तबेला बोलते हैं इसको. स्टेबल, प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट. ओके, अब देखिए. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey नाना. ओके, तो डंकी का नाम है ये नाना. एक फैमिली डोंकी था उनका नाम था, उसका नाम था नाना. वो उसके साथ वहाँ तबेले में रहता था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल. अब स्टेबल में उसको रखा गया. और ये टोटो एक ऐसा कैरेक्टर है, इतना मिस्चुअस है, आई टेल यू. ये कहीं रहने के लायक नहीं है, कहीं पर उसको रखने के लायक नहीं है. यही बात इससे हमारे समझ में आती है. देखिए, प्राइवेट जू में वो था तो किसी को जो रहने नहीं देता था, उसको कबर्ड के अंदर रखा तो उसने पूरा का पूरा जो ऑर्नामेंटल पेपर से वो निकाल दिए. अब उसकी मिस्चीवसनेस यहीं रुकती नहीं है, आगे भी देखिए बड़ा मज़ेदार किस्से आगे. रस्किन बॉन्ड अपनी बेहतरीन जो है राइटिंग स्किल्स, राइटिंग की उनकी शैली, जो वे आप उनका राइटिंग है उससे हमारे सामने वो रखते हैं.
बोलते हैं कि ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर उसको देखने गए कि क्या कर रहा है भाई, चलो टोटो को देख के। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज, अपरेंट यानी क्लियर, अपरेंट यानी क्लियर। तो एकदम सरप्राइज हुए ग्रैंडफादर, उन्होंने देखा नाना जो है, नाना मतलब डोंकी, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। वो एक लेडी डोंकी है, समझते ना। तो नाना जो है अपने आप को उस फीडिंग ट्रो से थोड़ा दूर खींचने की अपने आप को कोशिश कर रही है। मतलब उसको ग्रैंडफादर ने देखा कि वो पीछे पीछे हो रही है और ग्रैंडफादर उसके पीछे खड़े थे। तो ग्रैंडफादर ने सामने जाके देखा तो क्या हुआ है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस है ना कमर के ऊपर का हिस्सा उसको बोलते हैं, वहां पे 2 थप्पड़ उन्होंने लगाए। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो एकदम से पीछे आ गई। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और ग्रैंडफादर ने देखा टोटो जो है वो भी उसके साथ पीछे आया। टोटो कहाँ बैठा है देखिए, ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टिथ। उसने जो है अपने दांतों से, किसने, टोटो ने, उसके कान को उसने पकड़ के रखा था, कान उसके वो चबा रहा था। आप सोचिए, ये ही इज ए वेरी यू सी मिस्चियस मंकी। अपने लिटिल दांतों, शार्प लिटिल दांतों से जो उसके वो बेचारा वो डोंकी के जो है उसके कान वो चबा रहा था, और वो डोंकी जो है कुछ भी नहीं कर पा रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। तो इस तरीके से राइटर बोलते हैं कि टोटो और नाना जो इसके बाद से कभी फ्रेंड नहीं बन पाए। अब आप सोचिए, अगर कोई किसी के कान खा रहा है, कान चबाने की कोशिश कर रहा है, वो दोस्त कैसे बनेंगे। अब आगे की एक बड़ी बेहतरीन स्टोरी हमारे सामने रखते हैं ग्रैंडफादर। देखिए क्या बोलते हैं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर। ट्रीट का मतलब पार्टी जैसा होता है, ट्रीट मतलब एक विशेष ट्रीटमेंट उसको दी जाती थी। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। उसको एक लार्ज बाउल जो है में वार्म वाटर रख कर जो है उसको नहलाया जाता था उसमें। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। क्या करता था वो, ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। देखिए क्या करता था, तो सबसे पहले जाकर उसमें हाथ ऐसा डुबा के वो देखता था, टेम्परेचर चेक करता था, वेदर दी वाटर वॉज टू हॉट और नॉट। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट 1 foot देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। जैसे वो उसने राइटर को देखा था बचपन में, है ना राइटर, कि वो जैसे धीरे धीरे वो बाथटब में उतरते हैं, वैसे ही एक ग्रेट अपने उस बड़े से बाउल में उतरता था पानी। पहले टेम्परेचर चेक करता था, बहुत ज़्यादा गर्म है तो नहीं उतरता था, ठीक है। और देहरादून की ठंडी है, समझ रहे हैं आप। दिस इज दी कोल्ड वेदर ऑफ उत्तरांचल। पहाड़ियों का वेदर है, हिमालय पहाड़ियों का वेदर है ये, एकदम ठंडा। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। कनिंगली का मतलब होता है क्लेवरली। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट 1 foot देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। और वो आसानी से जो है वो पानी के अंदर बाद में चला जाता, और तब तक उस पानी के अंदर वो डूबा रहता जब तक उसका जो है गर्दन तक पानी नहीं आया, अप टू हिज नेक। ये पूरे वर्ड की मीनिंग देख लीजिए। आगे देखिए क्या होता है। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। अब एक बार कंफर्टेबल अगर वो जब वो हो जाता था तो वो साबुन उठाता और पूरे अपने शरीर में जो है वो साबुन लगाकर, जैसे बच्चे नहाते वैसे वो नहाता। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और पानी जैसे ही ठंडा हो जाता, ठंड में तो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, वो उसमें से बाहर निकलता नहाने के बाद और किचन की तरफ दौड़ता
हाथ सेकने के लिए, समझते हैं ना, अपने आप को ड्राई करने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस उसका चलते जब चल रहा था, है ना, वो नहाना, साबुन लगाना, पहले एक पैर डालना, फिर दूसरा पैर डालना, फिर जो है भागना, इस परफॉर्मेंस के तरफ उसके देखकर अगर कोई हंसता, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो को बड़ा बुरा लगता, उसके फीलिंग्स हर्ट हो जाते, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता। वन डे, एक दिन क्या हुआ, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इस इंसिडेंट के बारे में कि कौन से इंसिडेंट से वो बच गया था। क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ, देखिए अपने आप को, मतलब वो जलने वाला था लेकिन बच गया था। क्या हुआ, a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. लीड यानी होता है ऊपर का ढक्कन, लीड। एक एलईडी लीड वो एक अलग है, पेंसिल का लीड, एक लीड धातु होता है, और एक लीड होता है वो रस्सी जो पकड़ के खींचना, उसको भी लीड बोलते हैं, लेकिन ये एलआईडी लीड है, ये एलआईडी लीड। तो अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी, एंड टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। क्या हुआ, जॉइंट फैमिली थी इनकी, तो किचन के ऊपर, किचन फायर के ऊपर एक लार्ज किचन केटल रख देते थे, चाय की केटली होती है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसा ढक्कन होता है वो। और उसने देखा कि यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा चित्र मिल गया था मुझे, यस। और उसने देखा कि पानी उबल रहा है, नीचे से फायर चल रहा है, और उसको लगा कि ये मेरे नहाने के लिए पानी रखा होगा, या जो भी उसने सोचा होगा। उसने क्या किया, उसका लीड जो है उसका रिमूव किया, है ना, और उसमें जाके वो क्या हुआ, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, ही गॉट इन। गॉट इन का मतलब गेट इन का पास्ट टेंस है, गॉट इन। उसने देखा कि अरे ये तो बढ़िया पानी है ना, नहाने के लायक पानी है, तो उसमें जाके वो बैठ गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और पूरा का पूरा नेक तक वो अंदर चला गया, और उसका हेड जो है ऊपर दिख रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। अब आप समझ सकते हैं, थोड़ी देर तक के लिए तो ये बहुत बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि नीचे से जो है वो क्या जल रहा था, फायर जल रहा था। थोड़ी देर के लिए वो अच्छा रहा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, कब तक अच्छा रहा, लेकिन जब तक, तभी तक अच्छा रहा जब तक पानी उबलने लगा, समझ रहे हैं, पानी उबलने लगा तो उसकी हालत खराब हो गई। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। लेकिन टोटो ने देखा बाहर कि ठंड है, तो पानी उबलने लगा, तो उसको एहसास हुआ कि पानी उबलने लगा है, लेकिन बाहर उसने देखा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वो और अंदर बैठ गया जाके। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। अब एकदम पानी उबलने लगा तो वो उछलने कूदने लगा अंदर, तो ये आवाज़ किसी ने उधर सुना। अंटिल, तो ग्रैंड मदर दौड़ते हुए आई, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। हॉल्ड का मतलब होता है ऐसे सिर से पकड़ना, हॉल और हिलाना, ठीक है। हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। और अगर ग्रैंड मदर आया और कोई उसकी आवाज़ अगर नहीं सुनते, तो वहीं पे जो है वो जो है बॉईल हो जाता पूरा। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, तो उसको जो है हाफ बॉइल्ड जो है केटल के बाहर निकाला गया। इस तरीके से ये उसके एक शरारत का एक बेहतरीन नमूना था कि अपनी शरारत में जो है वो अपने आप को जलाने वाला भी था। ज़रूर इसको पढ़ना, रीडिंग करना इसकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसको एज इट इज़ लिखना है। अगर ये सवाल क्वेश्चन में आता है, इफ़ यू वुड हिट दिस क्वेश्चन, एज इट इज़ इसको लिखना है, क्योंकि ये पूरा थर्ड पर्सन में। हाँ, ओके, आगे देखिए।
ये पूरे वर्ड के मीनिंग है। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है, हम पढ़ते हैं। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, राइटर बोलते हैं, देखिए कितना सुंदर लिखा, राइटर बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई पार्ट, ब्रेन का कोई पार्ट स्पेशली मिस्चीफ के लिए रखा है भगवान ने आपके अंदर, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो, और वो पार्ट जो है टोटो के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। एक शरारती बच्चे होते हैं ना, तो बहुत ही शरारती होता। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, जब भी उसको कोई भी चीज़ उसके हाथ में आती वो उसको फाड़ के फेंक देता। टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, पीसेस यानी टुकड़े, टीयरिंग यानी फाड़ना, टीयरिंग यानी फाड़ना, TEAR, टीयर, ओके। वेनेवर वन ऑफ माई आंट्स, देखिए क्या बोलता है, एक आंटी थी उनके घर में, वेनेवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी उनके घर की एक आंटी थी, वो जब भी उसके करीब जाती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, वो जब भी वो उसको दिखती वो आंटी, तो उसके पास वो जाता और उसके वो ड्रेस को फाड़ देता, मतलब टीयर ए होल इनटू, उसके ड्रेस में जो है एक होल कर कर वो हमेशा जो वो काम है वो जरूर करता। अब देखिए इंसिडेंट भी बड़ा ही फनी है। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बार लंच था और मैंने बताया ना जैसे आपको जॉइंट फैमिली है तो एक पूरी पुलाव की डिश डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखी थी। अब क्या हुआ, पुलाव, पुलाव समझते हैं ना, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, ठीक है ना, वेज पुलाव, तो पुलाव की डिश है ना, चावल का जो बनता है। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड, जैसे ही हमने खाना खाने के लिए सबने एंटर किया रूम में, हमने देखा टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस, हमने देखा कि बीचों बीच बढ़िया टोटो भी बैठा है डाइनिंग टेबल पे और वो पूरा जो है वो खा रहा है क्या, पुलाव, सबके लिए जो बना था, समझ रहे हैं आप, पूरे परिवार के लिए जो बना है पुलाव। माय ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, ग्रैंड मदर जोर से चिल्लाई, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, ये कई बार वर्ड आया है आपको पता होगा, स्क्रीम मीन्स टू क्राई, जोर से चिल्लाई ग्रैंड मदर। एंड टोटो, अब टोटो को बड़ा गुस्सा आया, वो हमेशा ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाती थी। टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने वहां की एक प्लेट उठाई और किसकी तरफ दे मारी, ग्रैंड मदर की तरफ जोर से दे मारी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, तो उसकी एक आंटी जो है, राइटर की एक आंटी सामने आ गई, समझते ना, मौसी या बुआ जो भी है, वो सामने आ गई कि अरे ये तो बदमाश बंदर है। और जैसी वो आंटी सामने आई, सी रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने क्या किया, पानी का ग्लास उठाया और उस आंटी के ऊपर फेंक मारा, आंटी के पूरे फेस के ऊपर पानी फेंक कर मार दिया। समझ रहे आप कितना बदमाश मंकी है, देखिए। वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, और लेकिन बाद में जब ग्रैंड फादर आए है ना उसको रोकने के लिए, ग्रैंड, तो टोटो को लगा अरे ही इज माई रियल गॉड फादर, ओके, रियल माई ग्रैंड फादर, इन्होंने तो मुझे यहाँ लाया है। तो वो वहाँ से उसने क्या किया, देखिए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और एक विंडो से वो निकल कर भाग गया और अपने साथ वो पुलाव की पूरी डिश भी ले गया। समझ रहे हैं आप। फिर क्या हुआ, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और हम सब दौड़े कि कहाँ गया ये डिश, पुलाव की डिश लेके, सब भूखे पैसे बेचारे बैठे हैं। तो ये सब के सब नीचे खड़े, और उन्होंने देखा कि जैक फ्रूट ट्री के ऊपर बैठा है गार्डन में, कौन, टोटो, और बढ़िया जो है बैठकर पुलाव फिनिश कर रहा है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरा आफ्टरनून वो वहीं बैठा रहा, कहाँ पर, ऊपर, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, पूरे दोपहर तक वो वहीं बैठा रहा। दोपहर का खाना है ना, लंच का, लंच है, दोपहर तक वो वहीं बैठा रहा और एक एक पीस उसने कहा है, एक भी चिकन मटन का जो भी टुकड़ा है वो नहीं रखा, ना राइस उसने रखा, पूरा का पूरा पुलाव खा गया, पूरे परिवार का पूरा पुलाव अकेले खा गया। एंड देन
इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर का तो बहुत गुस्सा आता था उसको, तो ग्रैंड मदर की तरफ का उसको गुस्सा दिखाना था, हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। और उसने जो है वो पुलाव खाली हो गई, जो पुलाव की डिश थी वो नीचे पटकी सबके पैरों के नीचे, समझ रहे हैं आप, और अपने और जो है जोर जोर से वो हंसने लगा, एंड चैटर्ड विद डिलाइट, चैटर्ड का मतलब होता है दांत निकाल के हंसने लगा, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो डिश के जो है हजारों टुकड़े हो गए वो जोर जोर से हंसने लगा। तो सचमुच में बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव मंकी था। ओके, एंडिंग जो है बहुत ही सुंदर की है रस्किन बॉन्ड ने। क्या बोलते हैं वो देखिए, ऑब्वियसली, बिल्कुल एक क्लियर था, ऑब्वियस का मतलब क्लियर होता है, ऑब्वियस मीन्स क्लियरली, obvious means clearly, Toto was not the sort of a pet we could keep for long. टोटो एक ऐसा मंकी बिल्कुल नहीं था जिसको बहुत समय तक जो है रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ग्रैंडफादर की भी ये बात समझ में आ गई थी। वी वेयर नॉट वेल टू डू, वो इतने वेल टू डू लोग नहीं थे, समझ रहे ना, वो खुद एक एडॉप्टेड चाइल्ड है उस घर में, इतने वेल टू डू वो नहीं थे, मतलब इतने वेल टू डू भी नहीं थे, वेल टू डू तो थे वो, लेकिन इतने वेल टू डू नहीं थे, इतने संपन्न नहीं थे, इतने प्रॉस्परस नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। तो कौन इतना नुकसान जो है अफोर्ड करेगा, है ना, हमेशा जो है कुछ ना कुछ वो फाड़ता रहता था, कुछ तोड़ देता रहता था, डिशेस, क्लोथ्स, पर्दे फाड़ता रहता था, वॉलपेपर्स को ख़राब करता रहता था। तो राइटर बोल रहे हैं कि वी वर नॉट दैट मच वेल टू डू टू टू अफोर्ड दिस मच लॉस। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा जिससे इसको उन्होंने खरीदा था, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को फिर से उसको बेचा फॉर ओनली 3 रुपीज। विद द लॉस ऑफ 2 रुपीज ही सोल्ड हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज। देखिए 5 रुपए में खरीदा था और 3 रुपए में उसको बेच दिया। इसका मतलब यह है कि उनसे वो बड़े तंग आ गए थे, लेकिन टोटो की शरारतें उनके जीवन का हिस्सा बन गया, उनके ऑटोबायोग्राफिकल हिस्ट्री बन गई, उनके ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट बन गया। और टोटो को जब भी हम पढ़ेंगे, किसी भी बंदर को हम देखेंगे तो टोटो की ज़रूर हमें याद आएगी। तो ये बड़ा ही सुंदर सा लेसन यहाँ पर है। ये एक और चित्र जो है टोटो का, तो ये पूरा वर्ड मीनिंग्स ये सब आप जो है इसमें से देख लेना, और मैं इसका क्वेश्चन और आंसर का PDF फाइल आई शैल सेंड इट टू यू बाय टुमारो। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।